Good morning, students. Today we are going to discuss the laws which are used to define the chemical combination of elements in order to produce the compounds. Students, the combination of elements to form compounds is governed by 5 important laws. There are 5 important laws which are used to define the combination of elements to form compounds. One of the important law is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Students, the law of conservation of mass वो ये बताता है कि किसी फिजिकल या केमिकल चेंज में मास कंजर्व होता है. Mass of substances do not change in a physical or in chemical combination. Students, in order to understand the concept of law of conservation of mass, let us take the combustion of coke to produce carbon dioxide. Students, combustion of coke to form carbon dioxide, the reactants are coke, that is carbon, and oxygen, and the product is carbon dioxide. In order to verify the conservation of mass, let us calculate the total mass of reactants. आप reactant का mass अगर निकालो यहाँ से, let us calculate the mass of reactants. तो reactant का mass निकालो, तो कार्बन का जो mass होता है वो होगा आपका 12 ग्राम. ऑक्सीजन का मास आप निकालो, आप कहेंगे 60 × 2 ग्राम. टोटल जो मास आएगा वो 44 ग्राम आएगा. मतलब इस चेंज में जो यूज रिएक्टेंट है उसका जो टोटल मास है वो 44 ग्राम है. बट यहां का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट CO2 है, और आप CO2 का मास कैलकुलेट करिए. तो CO2 का अगर आप निकालेंगे मास तो आपको जो मिलेगा, this is 12 plus 16 × 2, that is we have 12 plus 32. In this way you get here 44 ग्राम. क्या मतलब हुआ कि जो रिएक्टेंट आपने यूज यहां पे किया है, जितना मास रिएक्टेंट का यूज किया है, सेम मास ऑफ प्रोडक्ट यहां पर आपको जनरेट हुआ है. Definitely this example reveals that during this chemical change of combustion, there is no change in the mass of substance takes place here. Means mass of reactant is same as the mass of product here. So definitely this generalization hold good in all the case of physical and chemical change. Just take the other examples and verify the validity of this conservation of mass and write your response in the comment box.
Students, after conservation of mass, we have another very important law which is called as law of definite proportion. उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. डेफिनिट प्रोपोर्शन. इसको समझने के लिए क्या करिए यार, मैं आपसे कहूं कि आप यहां पर एक सब्सटेंस लीजिए. मान लो हमने आपको वाटर दे दिया, एक आपको लेक वाटर दे दिया और एक आपको पॉन्ड वाटर दे दिया. आज आप ये दोनों वाटर सैंपल आपने जो लिया हुआ है, तो इसमें इसके अगर पहले इसके केमिकल कंपोजिशन को चेक करिए, तो केमिकल कंपोजिशन ये बताता है कि दोनों में इन्वॉल्व एलिमेंट सेम, बोथ कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन इट्स कंपोजिशन. जैसे पता ये लग रहा है कि हाइड्रोजन यहां भी है, हाइड्रोजन यहां भी है, ऑक्सीजन इसके कंपोजिशन में भी, ऑक्सीजन इसके कंपोजिशन में. तो और इसमें देखा जाए जो इनके मासेस का जो रेशियो आएगा, अगर आप हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इसमें निकालिए तो मास का रेशियो आएगा 2:16, मींस 1:8. और इसमें भी आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकालिए तो 2:16 मींस 1:8 आएगा. ये एग्जांपल बताता है आपको है इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, a compound contains same elements combined in definite proportion by mass. आप समझिए, we have the different sources of water, दोनों में जो एलिमेंट इन्वॉल्व है वो सेम है और इनके मास का जो रेशियो दोनों में 1:8 आता है. तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन आप ये कह सकते हो, इस लॉ का स्टेटमेंट आप बना सकते हो कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स एक कंपाउंड contains same element combined in the same proportion by mass. This statement of chemical combination is called law of definite proportion. Students, likewise, let us consider CO2, which is obtained from the burning of coke, and CO2 which is prepared in laboratory by the reaction of calcium carbonate with HCl. इसको आपने बनाया बर्निंग ऑफ कोक से और इसको आप लैब में बना रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन के थ्रू. स्टूडेंट्स, दोनों अगर आप देखो सिंपल ऑफ CO2 जो है, बोथ कंटेन्स द सेम एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन. इट हैज द कार्बन, इट आल्सो हैज द कार्बन, इट हैज द ऑक्सीजन, इट आल्सो हैज द ऑक्सीजन. और इनके मासेस का रेशियो अगर आप निकालिए 3:O का तो मिलेगा 12:32. इसको आप लिख सकते हो 3:8 का
Likewise यहाँ भी आप निकालो तो 12:32, again you get here that is 3:8 here. एलिमेंट भी सेम है और जो एलिमेंट कंबाइन है उनके मास का जो रेशियो है is found to be same in both the sample of CO2, that is 3:8. So definitely this example confirms the validity of law of definite proportion in chemical combination. Students, we have another very important law of chemical combination जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. स्टूडेंट्स, इस लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मान लो आपसे मैंने कहा कि कार्बन दो तरह के ऑक्साइड बनाता है. कार्बन forms two oxide. One is the carbon monoxide and other is carbon dioxide. तो कार्बन has ability to combine with oxygen to produce carbon monoxide as well as the carbon dioxide. Students, इन दोनों ऑक्साइड को चेक करो तो दोनों में कार्बन का 12 ग्राम ही मोल है. बोथ कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ कार्बन but have the different masses of oxygen. The first oxide has a mass of 16 gram of oxygen and second oxide has a mass of 32 gram of oxygen. तो अगर आप इनके जो दूसरे एलिमेंट है ऑक्सीजन उसका रेशियो निकालिए तो दैट फाउंड टू बी 1:2. दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं देन mass of the one of the element like carbon which combine with the different mass of other elements, the mass of the element which combined with the fixed mass of other element are in the simple whole number ratio. Students, आप समझे इस बात को कि these two oxide contain same mass of carbon and this same mass of carbon is combined with the different mass of oxygen. In first oxide it combines with the 16 gram of oxygen. In second oxide is combined with the 32 gram of oxygen. So ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का मल्टीपल होगा. जो फिक्स है उसकी बात नहीं है, जो फिक्स नहीं है उनके मासेस का अगर आप रेशियो निकालोगे तो डेफिनेटली दैट रेशियो फाउंड टू मल्टीपल ऑफ ईच अदर. दैट विल बी फाउंड टू बी सिंपल होल नंबर रेशियो. स्टूडेंट्स, लाइकवाइज वी टेक हियर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. We have N2O, we have NO, and so on. That is these two oxides. Students, if you consider these two oxides, then you will observe that both the oxides contains nitrogen and oxygen, and in these two oxides the mass of nitrogen is same. Sorry, mass of oxygen is same, but the mass of nitrogens are different. इस तरह अगर आप चेक करो तो दोनों में
जो ऑक्सीजन का मास वो 16 है, यहाँ भी 16 है, लेकिन इनमें देख रहे हो कि जो मास है नाइट्रोजन का वो 28 है, इनमें जो मास है 14 है। अब आप क्या करो, इसका अगर रेशियो कैलकुलेट करोगे, किसका, जिसका मास फिक्स नहीं है, जिसका मास वेरी कर रहा है जिस एलिमेंट, उसके मास का अगर रेशियो कैलकुलेट करोगे तो दिस रेशियो फाउंड टू बी 14:28, दैट इज यू गेट हियर 1:2. 1:2 इज सिंपल होल नंबर रेशियो, मतलब बेटे एक दूसरे का मास एक दूसरे का मल्टीपल है, मास एक दूसरे का मल्टीपल है। तो डेफिनेटली these two examples confirm the validity of law of multiple proportion in chemical combination. Students, likewise we have a third important law. It is called Gay-Lussac's law of gaseous volume. Students, Gay-Lussac's law of gaseous volume, law of gaseous volume. Students, let us consider the formation of water vapor with hydrogen and oxygen. You obtain, that is water vapor through this reaction here. आप ये केयर करो कि दिस रिएक्शन शोज दैट कि द वाटर वेपर is obtained by the reaction of hydrogen and oxygen. So चेक करो कि इस रिएक्शन में सारी जो स्पीसीज है, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, ये सारी गैसेस हैं। तो वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशन ऑफ Gay-Lussac's law of gaseous volume इज दैट कि अगर किसी रिएक्शन में गैसेस रिएक्ट कर रही हैं या वो प्रोड्यूस हो रही है, तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो सिंपल होगा, प्रोवाइडेड दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस स्पीसीज are measured at the constant condition of temperature and pressure. Students, आप अगर देखो, मान लो आपने किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर इसके वॉल्यूम को मेजर किया, तो इसका कुछ भी वॉल्यूम मान लो मिल गया, मान लो ये इसका वॉल्यूम 50 ग्राम मिल गया, क्या करो, अगर इसका वॉल्यूम ml अगर मिला आपको, तो पक्की बात है तो इसका जो वॉल्यूम मिलेगा दैट शुड बी डेफिनेटली बी 100 ml। और अगर ये 100 ml होगा तो पक्का यहां पर क्या होगा, ये आपको भी 100 ml मिलेगी। If under the same condition of temperature and pressure, the volume of these substances are measured, and let our observation is that the volume of oxygen found to be 50 ml. No doubt, volume of your hydrogen should be 100 ml, and this volume of hydrogen is 100 ml. No doubt, volume of H2 should also be 100 ml. So students, अगर आप यहाँ पे क्या करो, रेशियो कैलकुलेट करो, तो आपको जो रेशियो मिलेगा वॉल्यूम का, हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन H2O का आप निकालो अगर, नो डाउट द रेशियो इज फाउंड टू बी 2:,
दैट इज 1:2 और 2:1:2 बताता है कि गैसेस रिएक्ट करें चाहे प्रोड्यूस करें, ये हमेशा क्या करते हैं, इनका जो वॉल्यूम होता है एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, प्रोवाइडेड दैट द वॉल्यूम ऑफ gaseous species involved in the reaction is measured at the condition of constant temperature and pressure. So students, अगर आप इसको अगर आप फ्रेम करो अपनी लैंग्वेज में इस डेफिनेशन को, तो आप कहेंगे इन ए केमिकल रिएक्शन gases react are produced. The volume of the gases are in simple whole number ratio, provided that the volume of gases are measured at the condition of constant temperature and pressure. इस बात को जानने के लिए काम और कर सकते हो आप. Let us consider preparation of ammonia. अमोनिया का प्रिपरेशन आप करो तो पक्का है इसमें आपको नाइट्रोजन यूज करना पड़ेगा, हाइड्रोजन यूज करना पड़ेगा. और मान लो आपने यहाँ पर जो किसी फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर आपने जो इसका वॉल्यूम मेजर किया, वो मान लो आपने 100 ml मेजर किया. अगर आपने इसको 100 ml मेजर किया तो नो डाउट इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 300 ml आएगा, और इसका 300 ml आएगा तो इसका डेफिनेटली 200 ml आएगा. और आप फिर क्या करो, अगर आप तीनों स्पीशीज के वॉल्यूम का रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे, नो डाउट दैट फाउंड टू बी दैट इज N2:H2:NH3 का रेशियो कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा 1:3:2. अगेन इट सिंपल होल नंबर रेशियो. तो दिस जनरलाइजेशन अबाउट the gaseous reactions is called as Gay-Lussac's law of gaseous volume. Students, now we have another very important law of chemical combination, which is called Avogadro's law. Students, इसको भी समझने के लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं आपको. एवोगैड्रोस लॉ. हमने क्या किया, हमने आपको गैसेस दी हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, NH3, let us consider these 3 gases here: helium, hydrogen और अमोनिया. स्टूडेंट्स, 10th में आपने पढ़ा है हीलियम मोनोएटॉमिक है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला He लिखा जाता है. इसका जो डायटोमिक गैस है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2 लिखा जाता है. ये आपकी टेट्राएटॉमिक गैस, इसलिए इसका फॉर्मूला आप NH3 लिखते हो. सॉरी, यस स्टूडेंट्स, अब आप केयर करो, मैं आपसे बात करूं और एक और ले लेता हूं. लेट वी हैव ओजोन हियर. बेटे आपको बताऊं कि अगर आपको मैंने आपको 100 ml सारी गैसेस का ले लिया है, ले करके मैं आपसे कहूं कि जरा बताइए कि ऑब्जर्वेशन में क्या मिलता है कि आप क्या करो, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो 100 ml इन सारी गैसेस का आपने लिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करो. मैं मान लो बेटे इसमें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं. हीलियम गैस जो है उसके 100 ml में n मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. अगर इसमें n मॉलिक्यूल मिलेंगे
तो बाकी सारी जो गैसेस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे आपकी अमोनिया हो, चाहे आपकी ओजोन हो, सारे में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होंगे दैट शुड बी यन। अगर वो यन होगा तो यहां पर भी सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट शुड आल्सो बी यन। एवोगैड्रो का ये जो जनरलाइजेशन है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस contains equal number of molecules provided that the volumes of gases are measured at the same condition of temperature and pressure। इसी को हम लोग एवोगैड्रोस लॉ बोलते हैं। इस लॉ की एक बड़ी इंपॉर्टेंट करोलरी आती है, इसी से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं, और इस कंक्लूजन का केमिस्ट्री में बड़ा यूज है। उसको हम लोग कहते हैं कि गैस कोई आपके पास है, उसके वॉल्यूम को आप क्या करिए, एसटीपी पर मेजर करिए। एसटीपी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर है उसको हम लोग 273 केल्विन लेते हैं, और जो प्रेशर हमारा है उसको 1 atm R76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, या इसको 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम के बराबर हम लोग लेते हैं। जैसा भी यूज आपको करना पड़ेगा। अगर प्रेशर ये रखा जाए, टेम्परेचर की वैल्यू ये रखी जाए, तो कोई भी गैस ली जाए, किसी तरह की गैस ली जाए, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, व्हाटएवर द एटॉमिक सिटी उसकी, किसी भी गैस का अगर 22.4 लीटर लिया जाएगा तो उसमें जो प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 6.02 10⁻²⁰। और इसी नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ योर एवोगैड्रो नंबर। दिस सिंपल जनरलाइजेशन वाज गिवन बाय एवोगैड्रो regarding the number of molecules of different gases present in 22.4 liter at STP। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा है, ये जो रूल है, जो लॉ है, इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि STP पर, मतलब इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर कोई भी गैस ली जाए, NH3 आप लो, CO2 आप लो, H2 आप लो, हीलियम आप लो, कुछ भी लो, सारी गैसेस के अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम आप लोगे तो पक्का है उनमें जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल होंगे उसमें अमोनिया के मॉलिक्यूल 6.02 10⁻23 होंगे, CO2 के मॉलिक्यूल भी उतने ही होंगे, H2 के मॉलिक्यूल उतने ही होंगे, और हीलियम के मॉलिक्यूल उतने होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर laws of chemical combination. Students, try to learn the definitions, statement of all these laws of chemical combination and apply the concept in different cases of chemical combination. Thank you.